Okay, now that we're done with decor part of the video, let me come on the makeup and hair part of the video. One of my most favorite parts. So, मैं अपनी शादी से पहले after my roka, I went on this one makeup trial to this girl in Rohini. I called her. I was like, yeah, I like your stuff on Instagram. I saw that. Can I come for a trial? She was like, okay, 3,000 rupees for a trial. We will adjust it in the booking if you go with me. I went there for the trial, and to my surprise, I didn't like it at all. I thought, I would love it, and I'm going to book her. This is just a formality, the trial and everything. But this is how she made me look, which was exactly not what I wanted. तो उसके बाद मैंने बहुत मेकअप आर्टिस्ट सर्च किए, एंड आई थिंक मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो है अक्टूबर में जाके फाइनल हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, I finalized her in October along with the hair artist, and the work that she has done, the hairstyles, the makeup, everything was so on point. I was looking like a Barbie doll, and everyone who looked at me on my haldi function, my cocktail function, my wedding makeup, it was done such beautifully. My skin was looking flawless. I could really feel my skin in all those layers. It didn't move at all. My gemstones which she placed here for my haldi function, it stayed intact. I cried, I did everything, I had fun on my haldi, but everything stayed intact. The makeup stayed intact. So all my wedding makeup looks, I was so convinced, I was so happy that this lady would do the job perfectly. And when she exactly did my makeup on my wedding functions, it was such a beautiful job that she has done, and I heavily recommend her for makeup, along with makeup by Tanu Agarwal. She's a sweetheart. She makes you so comfortable. It's very difficult to sit on a chair and get your makeup done for like 3-4 hours. She does the job so perfectly. She makes you feel so comfortable. You're not even for one point you're thinking कि यार मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, मैं ये कब खत्म होगा, and ये क्या चल रहा है, and I'm not liking her vibe or anything. They are so fuss free. वो एक बार भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमें भूख लग रही है, हम पहले खाना खा के आ जाते हैं, फिर हम आपका मेकअप कर देंगे. They know that they are here for the job that they are here for. तो वो पहले वो करेंगे. And if your makeup is done at like 4 p.m. तो 4 p.m. के बाद अपना फिगर आउट करेंगे कि हमें लंच कब करना है, कैसे करना है, या रखवाना है खाना, या क्या करना है. They are such professionals. शुभम हेयर आर्टिस्ट is, I think, his Instagram handle. I'm attaching it here right now. He is such a darling. उनके hair styles जो उन्होंने मेरे ऊपर किए थे, all of them turned out so amazing. मेरे मेकअप के लिए और मेरे हेयर के लिए I was so stress free कि जब मैंने इनको बुक किया था ना, I was like, मेरा मेकअप और हेयर तो सॉर्टेड है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. You know, such a type A bride that I was कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, like to the T मुझे पता होना चाहिए कि क्या चीज कैसे हो रही है, क्या लग रहा है, क्या नहीं. I left everything on Tanu and Shubham, and they delivered it so perfectly. मुझे मेरे मेकअप लुक के लिए एक बार भी नहीं सोचना पड़ा कि हम ब्लश किस ब्रांड का लगाएंगे, या हम लिपस्टिक किस ब्रांड की लगाएंगे, या आप मेरे ऊपर किस ब्रांड का आई शैडो पैलेट यूज करने वाले हो, या आई लैशेज. नथिंग एट ऑल, नथिंग. आई थिंक हमने सिर्फ एक बार ये बात करी थी कि मुझे हेजल कलर के आई लेंसेज मेरे ऊपर थोड़े ज्यादा सही लगते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कलर, और वो पिक्चर्स में भी बहुत ज्यादा ऐसे फ्लैशेस में ना दिखते नहीं है कि आपने कुछ लेंस लगा रखा है. तो आई लाइक हाँ हम वो कर लेंगे. शी इज लाइक हाँ मैं हेजल ही प्रेफर करती हूँ. लाइक परफेक्ट, लाइक तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आप भी वही करते हो प्रेफर और मुझे भी वही चाहिए, तो हो गया. उसके अलावा हमने कुछ डिस्कशन ही नहीं करी. एंड इनफैक्ट मेरे से ज्यादा शी वॉज इंटरेस्टेड इन माई लुक्स की वो मुझे रैंडमली ऑन इंस्टाग्राम शी शेयरिंग की, यू नो, चेक दिस एक्सेसरीज, चेक दिस मेकअप लुक, चेक दिस लिपस्टिक, चेक दिस हेयर स्टाइल्स एंड एवरीथिंग. मेरे अलावा भी कोई है जो इंटरेस्टेड है मेरे मेकअप लुक्स में. इट्स नॉट लाइक कि मुझे उनका टाइम चेज करना पड़ रहा है. विथ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट क्या होता है, पीक सीजन में ना, जब आप ये नवंबर दिसंबर जैन फेब वाला टाइम होता है ना, वो ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है किसी और के बारे में सोचने का. एंड मोस्ट पीपल ओनली केयर अबाउट मनी, कि अब हमारे पास पैसा आ गया है, क्लाइंट का एडवांस आ गया है, तो लेट इट बी. अब जाके सीधा वेन्यू पे देखेंगे. बट नो, शी वॉजेंट लाइक दैट एट ऑल. उन्होंने मेरे से हर एक चीज डिस्कस करी है, एंड मैं तो उनके पास क्या ही जाती डिस्कस करने के लिए. वो खुद ही मेरे पास बार बार शी वाज सेंडिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम द इंस्पिरेशंस, एंड आई वाज सो लविंग इट बिकॉज द वाइब वो वहां से बिल्ड हो जाती है. व्हेन आई सॉ हर ऑन द वेडिंग वेन्यू, आई वाज सो थ्रिल्ड दैट मेकअप बहुत अच्छा होने वाला है. तो एक पॉजिटिविटी से जब कोई चीज शुरू होती है ना, इट टर्न्स आउट ऑल्सो अमेजिंग. शी डिड माई मेकअप, शुभम डिड माई हेयर, जो ड्रेप वगैरह करना था, दुपट्टा वगैरह, वो उन्होंने किया.
ऑल्सो टेक टाइम टू कैप्चर यू ब्यूटीफुली। अपने फोन से भी वो आपको इनफ कैप्चर करते रहते हैं, BTS रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे हो कि आप कंफर्टेबल हो सब चीज़ों में, तो they also do that. So just make sure that whoever you're hiring for your makeup and hair, they are such professionals, and they also make you feel good because it's your wedding and you're already stressed about like 10,000 other things. So आपको इस पे भी आप stress नहीं ले सकते, right? So just make sure that you're making your decisions perfectly. And this is my review of Tanu and Shubham. The price also, अब क्या होता है ना, जो आपके मेकअप आर्टिस्ट का प्राइस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मेकअप आर्टिस्ट ने बोला है कि मैं आपसे 50,000 या 1 लाख रुपए लूंगी फॉर वन फंक्शन के मेकअप के लिए, तो उसमें उस 1 लाख रुपए में आपका मेकअप इंक्लूडेड है, आपके आई लैशेज इंक्लूडेड है, लेंसेज इंक्लूडेड है, हेयर स्टाइल इंक्लूडेड है। और अगर आपको नॉर्मल ड्रेप करानी है ना, कि मुझे सिर्फ ऐसे लहंगे पे चुन्नी ड्रेप करानी है, तो वो इंक्लूडेड है। अगर आपको साड़ी ड्रेप करवानी है तो वो उसमें इंक्लूडेड नहीं, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। और ऑफ कोर्स इसके अलावा जो उनका ट्रांसपोर्ट होगा, आने जाने का, रहने खाने का, वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि उन्होंने मुझसे कितना चार्ज लिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अब नया सीजन आ चुका है, वेडिंग सीजन, तो उनके रेट्स ऑफ कोर्स चेंज हुए होंगे, कम ज्यादा, दैट आई डोंट नो। और डेस्टिनेशन वेडिंग के रेट्स उनके क्या है क्या नहीं है, बट व्हाट आई कैन गिव यू इज लाइक अ बॉल पार्क फिगर कि वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में थे। तो यू कैन मेक योर ओन डिसीजन एंड यू कैन चेक कि आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। दे डिड 3 ऑफ माई फंक्शंस, माई हल्दी लुक दे डिड, माई कॉकटेल लुक दे डिड एंड माई वेडिंग लुक दे डिड। आप जस्ट मेक श्योर करो कि आप जिसको भी हायर कर रहे हो वो आपके कौन कौन से लुक्स कर रहे हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। मोस्टली क्या होता है ना, अब जैसे इसमें मेरे हेयर एक्सटेंशन इंक्लूडेड नहीं थे, ऑल्दो मेरे बाल बहुत वॉल्यूमिनस हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि मेरे को जरूरत होगी। बट व्हेन यू आर देयर यू चेक, दिस इज माई हल्दी हेयर, दिस इज माई कॉकटेल हेयर एंड दिस इज माई वेडिंग हेयर। सी कि ये इतना वॉल्यूमिनस दिखाने के लिए इसमें एक्सटेंशंस ऑब्वियसली लगे हैं। मेरे हल्दी हेयर पे भी लगे हैं बहुत अच्छे खासे एक्सटेंशंस। मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन योर हेयर एक्सटेंशंस, क्योंकि उससे आपका हेयर स्टाइल और अच्छा लगता है और निखर के आता है। इनफैक्ट मेरी मॉम का भी मेकअप उन्होंने किया था एंड उनके भी हेयर स्टाइल में एक्सटेंशंस यूज किए थे, बिकॉज इट जस्ट मेक्स यू लुक इवन बेटर। अब जो आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन 4,000 रुपए का है, यू कीप इट। वो उन्होंने जो मेरा यूज किया था, मेरे हल्दी हेयर पे यूज किया था, क्योंकि वो ऑफ कोर्स खराब होने थे, तो फिर वो आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन से चल गया था। बट मेरे कॉकटेल हेयर एक्सटेंशन पे उन्होंने रियल हेयर यूज किए थे। नाउ रियल हेयर एक्सटेंशन आर इवन मोर एक्सपेंसिव। दैट व्हाट दे डू, दे चार्ज यू मोर फॉर द रियल हेयर एक्सटेंशन एंड दे ऑल्सो डू नॉट लेट यू कीप इट, विच इज अ लिटिल बमर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आर्टिफिशियल से भी ज्यादा अगर पे कर रही हूँ तो माइट एज वेल गेट टू कीप इट ऑल्सो। बट दैट डजंट हैपन, वो दे टुक इट विद देम। बट नॉनदलेस मैंने ये सोचा था जब मैं उनको बुक कर रही थी कि मुझे हेयर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होगी, एंड आई वाज ट्राइंग टू कट द कॉस्ट देयर। बट लेटर व्हेन आई वाज देयर आई फिगर्ड आउट कि नहीं, ये बहुत जरूरत मुझे है, एंड दैट वाज एन एडिशनल कॉस्ट। बट वो आप देख सकते हो कि अगर आपको जरूरत है या नहीं है, तो यू कैन like check it for yourself and I think you'll be good to go. Another thing that I want to mention is that कि हमारा जो करनाल में फंक्शन था 4th को, उसके लिए मैंने अपना मेकअप करवाया था सांची कपूर से। Of course my mom really loved that makeup because शायद उनको वो बहुत heavy makeup चाहिए था। She comes from that generation where it's okay to apply so many layers and so many heaviness on your face. Although I am not that person, of course like my skin is good, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेकअप से। इट्स टर्निंग और इट्स शोइंग टेक्सचर और इट्स शोइंग पिगमेंटेशन और एनीथिंग लाइक दैट। बट इफ आई हैव टू चूज वन, देन तनु इज लाइक 100 times better than सांची कपूर। हर मेकअप वॉज good. I'm not saying that it wasn't good. This is how I was looking on that function and of course it has turned out beautifully. The hair artist जो उन्होंने मुझे assign किए थे, they were not very professional, तो वो अच्छे से कर ही नहीं पा रहे थे जो मैंने उनको लुक दिखाई थी। तो बहुत टाइम लग रहा था उनको, एंड आई हैड टू लाइक रियली टेक वन हेयर स्ट्रैंड एंड टेल देम कि इसको आप ऐसे लेके जाओ, इसको ऐसे लेके जाओ, यहाँ पे ये लगाओ वो लगाओ। ब्रेड्स भी इनफैक्ट लाइक इमेजिन को यहाँ की और यहाँ की ब्रेड्स भी मैच नहीं कर पा रही है, एक पतली है तो एक मोटी है। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ experience that you want to have right before your function. So that is one review also which I want to give. जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो ये भी बात कर देते हैं कि करनाल के मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ कैसा रहा। एंड आई थिंक या हो गई है ना सारी बातें, अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। बाय बाय।